I hope you guys are doing well. So today we are going to discuss number of theories and all are very important. तो हमने पिछली क्लास में we discussed about the basic things that we have to do in the CTET course. Pedagogy के बारे में हम पढ़ रहे हैं, child development and pedagogy, the first unit that you are dealing with me. And we stopped where? We stopped while we were discussing about the various domains of learning. Learning and हम लोगों ने और क्या देखा था? हम लोगों ने development and growth, not learning, development and growth के बारे में बात की थी. We distinguished between the two as well. We discussed about the domains of development. Then I told you that we will be talking about cognitive development. So today the whole class is dedicated to cognitive development. कि cognitive development क्या होती है? What exactly is cognitive development? So cognitive development, it refers to the growth. Cognitive development क्या होता है? It refers to the growth and the progress of the child's mental health. किसी की mental performance, growth and progress of the child's mental progress. जब उनका mental progress होता है उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, इट इंक्लूड्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. हियर यू एक्वायर नॉलेज. सो देयर इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. आपको बच्चे को क्या करना आ जाता है? बच्चे को एक्वायर करने आता है नॉलेज. दिस इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. देयर आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. Problem solving skills. Then there is memory level that becomes very sharp. बच्चों की memory sharp हो जाती है. Then language, वो किस पे काम कर पाते हैं? Language development में उनकी क्या होती है? Language development होने लगती है. बच्चे धीरे धीरे language में better होने लगते हैं. पहले कुछ नहीं आता, babbling कर रहे हैं, cooing कर रहे हैं, बाद में अच्छे से sentences formation होने लगता है. So there is language development. After language development there is perception that is created. और क्या create होता है? Perception create होने लगती है. I'll write it here. क्या create होता है? Perception. Now what is perception? The way they think, they become rational citizens. Rational decisions लेने लगेंगे. पहले mother father पे fully dependent, उसके बाद बहुत ज़्यादा rational बन जाते हैं. So they become more and more rational. They start to think. उनका थिंकिंग प्रोसेस इंटेलिजेंट होते लगते हैं. थिंकिंग और इंटेलिजेंस भी फॉर्म होते लगती है. इंटेलिजेंस भी फॉर्म होने लगती है. सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि बच्चे का क्या होता है? कॉग्निटिव ग्रोथ, मानसिक विकास कॉग्निटिव ग्रोथ कहलाता है. राइट. सो दिस इज अ हॉलमार्क दैट इज अचीव्ड. सो एज आई टोल्ड यू वी हैव वन थ्योरी बाय पियाजे. किसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे? हम थ्योरी पढ़ेंगे जीन पियाजे की. सो जीन पियाजे वाज अ पर्सन हु टॉक्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ही गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और यही वाली थ्योरी पेपर में सबसे ज्यादा आती है. इसको हम काफी टाइम डेडिकेट करेंगे. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से क्लास में करने का ट्राई करते हैं. So theory of cognitive development. So Jean Piaget was a Swiss, was a Swiss psychologist. Swiss psychologist थे जिन्होंने किसके बारे में बात की? He talked about how a child goes through multiple stages with multiple stages एक अपनी प्रोग्रेस में, और वो धीरे धीरे चीजों को लर्न करने लगते हैं. There are stages like the first stage जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, and this is called as sensory motor stage. ये फर्स्ट स्टेज है जिससे बच्चा जाता है, and it is called as the sensory motor stage. जब भी बर्थ होता है बच्चे का, till the age of 2 years तक उनका सेंसरी मोटर स्टेज होता है. This spans from the birth to 2 years. I will give you certain key points to write it down. Why? Because पेपर में आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ जाता है.
So, as the name suggests, the child during the initial part primarily is focusing on the parents as well as their own senses. तो वो किस पे डिपेंडेंट है? अपने सेंस ऑर्गन्स पे और अपने पेरेंट्स पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है. सेंस ऑर्गन्स लाइक टचिंग, फीलिंग, सीइंग, इन चीजों पे, लिसनिंग, ये वो वाली स्टेज है. सो यहाँ पे उनके क्या है, जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं, वो उन पे काम करते हैं. प्राइमरी सेंसेस अपनी सेंसेस पे काम करते हैं और रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं. तो सेंसेस एंड रिफ्लेक्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट है. द चाइल्ड्स बिहेवियर इंक्लूड more of the progress, that is the more of the senses that grow rather than the complex physiological changes, है ना. So यहाँ पे they see that they are crawling. ठीक है, यहाँ पे वो क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं. मूविंग द बॉडी, दे स्टार्ट मूविंग द बॉडी, अपनी बॉडी को मूव करते हैं. दे स्टार्ट टू क्रॉल, दे मूव देयर बॉडी. दे ऑल्सो डू बैबलिंग. इसी वाली स्टेज पे सबसे ज्यादा वो क्या स्टार्ट करते हैं? बैबल करना. बैबल क्या होता है? पूरे वर्ड्स तो फॉर्म नहीं हुए हैं पर धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो बैबलिंग स्टार्ट करते हैं. दे ग्रेजुअली बिकम engaged with direct goal engagement activities, जैसे कि वो टॉयज को अपने बॉक्सेस में डालना, ऐसी एक्टिविटीज के साथ एंगेज करते हैं. सो देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस, देयर इज bodily movements and there is the language development that happens. यहाँ इस स्टेज पे वो क्या करते हैं? early signs of language development is seen. The primary characteristic of this phase is the development of object permanence. उन्हें क्या समझ आने लगता है? उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में समझ आने लगता है. व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? ठीक है, कि साइजेस क्या है, ये स्क्वायर है और ये मुझे स्क्वायर बॉक्स में डालना है, ये सर्कल है, तो उन्हें ऑब्जेक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड जो वो देख सकते हैं वो रियल है, that is seen, right? It is easy to distract a child and to take away the object. आपने देखा है, अगर आप उन्हें distract करते हो तो आप उनसे वो सामान ले सकते हो. And the child will search about the object, उस टॉय के लिए वो ढूंढेंगे. ये सारी वही स्टेज है जहाँ पे उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ आने लगता है. If it is not visible, they will become very haphazard. This is demonstrated with an activity of peekaboo, है ना. वो उस एक्टिविटी के साथ आप क्या करते हो? उनको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, कि अगर उनके सामने से द ऑब्जेक्ट इज गॉन डज नॉट मीन द ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. दे विल ग्रेजुअली सर्च अबाउट इट. सो दिस इज द स्टेज वेयर ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अचीव टिल द एज ऑफ 2. वो ऑब्जेक्ट परमानेंस समझते हैं. दिस इज द सेंसरी मोटर स्टेज फ्रॉम 0 to 2 years. From 0 to 2. Then we have the pre-operational. The pre-operational stage. Pre-operational हम 2 to 7 years के बच्चे के लिए कहते हैं. 2 to 7 years. 2 to 7 years. This stage spans from 2 to 7 years and it is crucial because here you are in the elementary school. यहाँ पे बच्चे कहाँ हैं? एलिमेंट्री स्कूल में है. काफी सारे उनके अंदर चेंजेस आते हैं. They attend the school, the mental process is creating a lot of changes in their body. Mental progress कह सकते हो जिसको आप. They fairly develop in this stage. This development proceeds to other processes that would happen. Despite the fact that the child has different schemas for many actions, there are several limitations in ability to think like adults. They understand that there are schemas. Now, this is a word that Jean Piaget talked about. Schemas are the small chunks of knowledge. ये क्या होते हैं? स्मॉल चंक्स ऑफ नॉलेज. बच्चे ये कलेक्ट करने लगते हैं जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्लास में मेरी मैम ने मुझे कुछ समझाया, सेकंड क्लास में इसी के रिलेटेड कुछ और समझाया, तो 1, 2 और ये थर्ड चीज भी जब मुझे समझाई तो ये फर्स्ट के बेसिस पे ही मुझे थर्ड समझ आता है. यू नो, द नॉलेज इज क्रिएटेड लाइक दिस ओनली. इट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड. नॉलेज क्या होती है? इट इज कंस्ट्रक्टेड. यू हैव द फर्स्ट स्कीमा, द फर्स्ट चंक ऑफ नॉलेज, यू अटैच इट विद द नेक्स्ट वन एंड देन द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज हाउ द न्यू नॉलेज इज गेन. इसी तरीके से बच्चे नई नॉलेज सीखते हैं, तो बच्चों को धीरे धीरे ज्यादा चीजें समझ आने लगती हैं. द चंक्स ऑफ नॉलेज दैट दे गैदर.
the child is not an adult here, but still they learn things, right? The capacity to mentally do and reverse the action is called as operation and operational thinking, right? Since it is the second stage, it comes before development of such thinking. तो एकदम correct amount of thinking से पहले वाली stage प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है. ये क्या है? प्री ऑपरेशनल. करेक्ट थिंकिंग अभी फॉर्म नहीं हुई है, राइट? डिस्पाइट द फैक्ट दैट द चाइल्ड हैज स्कीमास, दे आर स्टिल लिमिटेड बिकॉज ऑफ द एडल्ट्स, राइट? द चाइल्ड कैन डू एक्शंस ओनली फिजिकली बट नॉट मेंटली. तो यहाँ पे वो फिजिकली तो चीजें कर पाते हैं ज्यादा अच्छी, लेकिन अभी इतनी मेंटली नहीं कर पाते. बिकॉज मेंटली कोई चीज करना, मेंटली कोई चीज कर लेने को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल कहते हैं. ऑपरेशन कहते हैं ना, कुछ काम कर देना, ऑपरेशन. ये प्री ऑपरेशन है. तो ये जस्ट उससे पहले वाली स्टेज है. The child learned the name of the objects, they identify the objects. तो पहले में हमने उन्हें स्क्वायर और सर्कल दिखा के या फिर ट्राइंगल दिखा के, उनको दिखा के छुपा दिया था और फिर वो उसे ढूंढ रहे थे. लेकिन अब वो समझने लगेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, सॉरी ये ट्रायंगल है, ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये सर्कल है. धीरे धीरे अब वो शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स के नेम्स को भी समझने लगेंगे, उनके साइजेस को भी समझने लगेंगे, right? The child begins to use symbols such as languages and mental images that can make them identify. तो objects and ideas उन्हें समझ आते हैं. क्या समझ आते हैं? Object and ideas उन्हें समझ आते हैं. The principle of conversation says that even if the change in the appearance of the object and the characteristics remain the same, they still understand the things. Egocentrism is also a characteristic of this stage, right? The child have the difficulty in seeing the things from the other person's perspective. It is one of the reasons why the child at this stage is very selfish and less respecting the teachers and the parents, right? तो ये stage पे क्या होता है? This was also PYQ. Egocentrism क्या होता है? ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं बच्चे. क्या बन जाते हैं? यू कैन कॉल देम एज सेल्फिश. बच्चे क्या हो जाते हैं? सेल्फिश. व्हाई सेल्फिश? बिकॉज दे वांट टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. वो किसी और की बात समझ ही नहीं पाते. उन्हें लगता है जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, नो मैटर व्हाट. जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है. दिस इज अ स्टेज वेयर दे आर ईगोसेंट्रिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे वो लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन करते हैं. किसी से भी बात करने में यकीन नहीं रखते हैं. सिर्फ अपने आप जो सही लगा उसे मान लेते हैं. दिस इज प्री ऑपरेशनल. फिर आती है एक और स्टेज, द थर्ड स्टेज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स तक रहती है. 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक हमारे पास कॉन्क्रीट टू ऑपरेशनल स्टेज होती है. दिस इज अ स्टेज दैट स्पैन्स फ्रॉम 7 years to 11 years, and here in this phase the child becomes very capable of decentering and reversing actions mentally. क्या करते हैं? decentraling एंड रिवर्स एक्शंस भी कर पाते हैं. ठीक है? डिसेंट्रलिंग एंड रिवर्स एक्शंस कर पाते हैं मेंटली भी. देयरफॉर दे अप्लाई कन्वर्सेशन प्रिंसिपल्स. यहाँ पे वो क्या करते हैं? किसी के साथ कन्वर्सेशन भी कर पाते हैं, बात भी, और कन्वर्सेशन के साथ साथ कन्वर्जन प्रिंसिपल्स भी कर पाते हैं. कन्वर्जन प्रिंसिपल भी कर पाते हैं. देयरफॉर दे अप्लाई दिस प्रिंसिपल है. यहाँ पे they become more capable of understanding. For example, say there is an amount of water and you know that इस ग्लास में ज्यादा पानी आता है या दूसरे ग्लास में ज्यादा, है ना? ये ग्लास है और एक ऐसा ग्लास है. सो बच्चों को समझ आएगा कि किस ग्लास में ज्यादा पानी है. इस ग्लास में ज्यादा पानी है, इस ग्लास में ज्यादा. इस स्टेज तक दे बिकम लिटिल स्ट्रॉन्गर. वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं. द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इफ दे कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट द अमाउंट. They can classify the object. वो क्या कर सकते हैं? ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं.
एंड दे कैन डू क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला देयर आर दीज ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज कलेक्ट ऑल द सर्कल्स आउट ऑफ इट, तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट सर्कल इज एंड दे कैन क्लासिफाई इट। वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। अब दे बिकम मेंटली स्ट्रांग, दे कैन पिक आउट द थिंग्स दैट वी नीड। यहाँ पे वो लॉजिक समझने लगते हैं। क्या समझने लगते हैं, लॉजिक समझने लगते हैं। देयर थिंकिंग एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, उन्हें पता है कि 4 + 2 6 होता है, ठीक है, लेकिन 6 + 2 4 होता है, उन्हें समझ आने लगता है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे थिंकिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है। दिस इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। लॉजिक भी उनका इंक्रीज होता है, ऑपरेशनल थिंकिंग इंक्रीज हो जाती है। ओके, दिस इज द 4th स्टेज। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल। लास्ट स्टेज क्या होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सो द स्टेज दैट इज अराउंड 11 years and above is called as formal operational. इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल। द स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 11 एंड गोज टिल एडल्टहुड। कहां तक जाती है, हमारी एडल्टहुड तक जाती है। द स्टेज मार्क्स द एमर्जेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब बच्चे लॉजिक से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी अच्छे से करना सीख जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एंड वी हैव हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस भी क्रिएट करते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। एडोलेसेंस भी इसी स्टेज पे आती है। एडोलेसेंस उसको इन्हीं स्टेज पे मिलता है, राइट। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या करते हैं वो, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं। और क्या कर पाते हैं, ह्यूरिस्टिक थिंकिंग एंड लर्निंग कर पाते हैं, खुद से ही डिसीजंस ले पाते हैं थोड़े से, ठीक है। many children never reach this stage बहुत जल्दी से, उनको लेट एलिमेंट्री में पहुंचते हैं, बट दे ग्रेजुअली लर्न एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो उनको क्या है, अपने सिंबल्स समझ आने लगते हैं, चीज़ों के बारे में हाइपोथेटिकल चीज़ें समझ आने लगती है, मतलब अब वो एजम्पशंस भी समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड एजम्पशंस उनको समझ आने लगता है। दे क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स विद द अदर पर्सन एज वेल। सो यहाँ पे देयर मैक्सिमम ग्रोथ इज सीन। ये कहाँ तक जाते हैं, ये एडल्टहुड तक, एडल्टहुड तक इसी वाली एज में जाते हैं, ठीक है। सो देयर आर दीज 4 स्टेजेस। कौन सी 4 स्टेज हैं, वी हैव द सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल, concrete operational, as well as formal operational. Now what happens, there are small chunks of knowledge that are called schemas, जिसको पियाजे ने schemas का है ना। इसको आप क्या करते हो, समझने का ट्राई करते हो। योर दिस इज सपोज दिस सैक इज दिस सैक इज अ ब्रेन हेयर। इस एग्जाम्पल से समझो, ये सैक क्या है, ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर जब आपने ये बॉल्स डाली उठा के, ये बॉल्स क्या है, मेरे स्कीमास है। आपने ये बॉल डाली, जब भी आप किसी सैक में बॉल डालते हो तो सैक शेक करेगा थोड़ा सा, है ना, सैक शेक करेगा। तो जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हम डिसइक्विलिब्रियम पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम पे चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिसइक्विलिब्रियम पे चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मतलब शेकिंग ऑफ द वेसल, शेकिंग ऑफ द सैक, शेकिंग ऑफ द ब्रेन, हम लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। फिर हम चीजों को एस्टिमुलेट करते हैं,
मतलब उन्हें इकट्ठी करते हैं, बॉल्स को और इकट्ठी करेंगे, फिर उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। तो नई नॉलेज पहले डिसइक्विलिब्रियम लाती है, फिर एसिमिलेट होता है, फिर इक्विलिब्रियम, उसके बाद एकोमोडेशन, और उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। मतलब वो न्यू नॉलेज हमारे माइंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे हमने सैक में बॉल्स डाली, पहले सैक बहुत ज्यादा हिला लेकिन फिर नॉर्मल हो गया, उसी तरीके से पहले हमने डिसइक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया, फिर हमने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। Chunks of knowledge that are called as schemas help us to learn. This is what Piaget said, that every child will go through these 4 stages. And when वो formal operational पे जाते हैं तब उनके पास correct knowledge आने लगती है. Is this clear? Clear to everyone? इसके साथ कॉग्निटिव थिंकिंग के अंदर ही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही देयर इज अनदर थ्योरी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइगॉट्स्की की थ्योरी कहते हैं इसको, लेव वाइगॉट्स्की इनका पूरा नाम है। इट इज कॉल्ड एज सोशियो कल्चरल थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये सोशल लर्निंग नहीं है, सोशल लर्निंग के फादर बेंडूरा है, एल्बर्ट बेंडूरा। ये क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी है। अब लेव वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगॉट्स्की वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी which emphasizes the role of social interactions. ये कहते हैं कि students learn a lot from social relations as well as interactions. वो social interactions और relations से बहुत सीखते हैं, ठीक है, as well as from cultural influences, और cultural influences से भी सीखते हैं, ठीक है। That is this two things are going to lead them to have cognitive development. यहाँ से cognitive development आती है। The theory suggests that learning is a collaborative process. बहुत important line है। ये theory कहती है that बच्चे जब learn करते हैं, learning is a collaborative प्रोसेस। लर्निंग कभी आइसोलेशन में नहीं होती है। लर्निंग इज ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन दैट द नॉलेज इंक्रीजेस। सो व्हेन अ चाइल्ड इंटरैक्ट्स विद द मोर नॉलेजेबल अदर, जब एक चाइल्ड इंटरैक्ट करता है मोर नॉलेजेबल अदर के साथ, MKO, फॉर एग्जाम्पल पीयर ग्रुप हो सकते हैं या टीचर। अब ये मोर नॉलेजेबल वन कौन हो सकते हैं? टीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ एनवायरनमेंट से भी सीख सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं? दे टेंड टू लर्न मोर। दिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड दिस कॉजेज स्कैफोल्डिंग। ये क्या लेके आता है? स्कैफोल्डिंग। इस कॉन्टैक्ट को हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब देखो, टेक दिस एग्जांपल, दिस विल मेक इट वेरी क्लियर। दिस इज द फर्स्ट सर्कल, the second one and the third one. Okay, let us understand this. So Lev Vygotsky ने क्या कहा? This is a zone where you are too comfortable. ये वो जोन है जहां पे आप खुद ही कर सकते हो चीजें। फॉर एग्जाम्पल ले लो रीडिंग का। तो इतने तो बड़े सब हो गए हैं कि सब रीड कर लेंगे रीडिंग का। दिस इज अ जोन दैट इज आउटसाइड कंफर्ट। ये कंफर्ट से आउटसाइड है। फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ ट्रक या ड्राइविंग अ ट्रक, ठीक है, ड्राइविंग अ ट्रक कर लो।
अब ये वो चीज है जो सीख के भी मुझे कोई फायदा नहीं है ना। तो ये दो जोन्स हैं दैट कैन बी निग्लेक्टेड. दिस इज अ जोन दैट इज नॉट एडिंग एनीथिंग, दिस इज अ जोन दैट इज नॉट needed as such. But this zone is a zone where a child can learn. Say I want to learn म्यूजिक. अब ये तो बहुत नॉर्मल है जिसके लिए मुझे किसी की जरूरत है सीखने के लिए. सो आई विल इंटरैक्ट विद द मोर नॉलेजेबल अदर. When the less knowledgeable one interacts with the more knowledgeable one, they gain knowledge. वो क्या gain करते हैं? Knowledge. This process is called as scaffolding. The interaction between the less knowledgeable one and the more knowledgeable one is called as scaffolding. And this zone is called as ZPD, Zone of Proximal Development. This is called as Zone of Proximal Development. ठीक है? Is this clear? So collaborative learning क्या है? So Vygotsky emphasized the importance of social interaction in this process. He said that the teacher encouraged the students to work in pairs, in small groups and do collaborative activities so that they learn better. अब teacher भी क्या करती हैं? बच्चों को collaborative activities कराती हैं, जैसे project work, group discussions, etc. so that they learn. So आप peer group, environment, parents, teachers किसी भी help से सीख सकते हो. And they are all your more knowledgeable one. ठीक है? I hope this theory is also clear to you. Lev Vygotsky and Piaget पेपर में बहुत बार आता है. ऐसे ही there is another theory called as information processing theory. This theory views mind as what? Mind as a computer. Information processing theory. Information processing theory. अब ये थ्योरी क्या कहती है? This theory says that my mind is like a computer that can store a lot of information. Mind क्या है? कंप्यूटर जैसा है that can store a lot of information and can process information. It focus on how child encode, child कैसे encode करता है मैसेज को, देन उसके बाद चाइल्ड क्या करता है? फिर स्टोर करता है उस मैसेज को, देन उस टाइम आने पे वो क्या करता है? रिट्रीव करता है. ब्रिंगिंग बैक द मेमोरी दैट इज स्टोर्ड इज कॉल्ड एज रिट्रीवल. देन द चाइल्ड विल मैन्युपुलेट द मेमोरी. अब वो एक मेमोरी को यूज करके, मैन्युपुलेट करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करना. इससे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी. द कॉन्सेप्ट pays attention to various concepts. यहाँ पे कुछ concepts जरूरी हैं, like what exactly is attention? Attention क्या होता है? Attention. Then what is memory? Memory होता क्या है? And problem solving. और problem solving क्या है? ये तीन चीजें you have to understand 1, 2 and 3 to understand this model of information processing theory. Okay, so firstly a child will have a particular event. एक event हुआ जहां से मुझे एक knowledge मिली. क्या मिली? मुझे एक knowledge मिली. इस knowledge को मैंने क्या किया? इनकोड किया, मैंने पैक कर दिया. उसके बाद मैंने इसको अपने ब्रेन में स्टोर कर दिया कि अब मैं इसे आने वाले टाइम में यूज करूंगी. Bringing it back is retrieval. The stored memory, that is a long term memory. और memory दो तरीके का होता है. क्या होता है? Memory is of two types. We have the short term memory and the long term memory. The short term memory is also called as the working memory. इसे और क्या बोलते हैं? Working memory. Like the episodic memory. जल्दी जल्दी हम इसे यूज भी कर रहे हैं और भूलते भी जाते हैं. लेकिन long term memory is stored in the brain at the back side of the brain and you retrieve it back to use it and then you manipulate it. मतलब manipulation मतलब real life events में उसे use करते हो to do problem solving, right? तो this is a non-Piagetian theory.
Building on Piaget's theory, this theory is a non-Piaget theory. Like Robbie Case have modified and extended Piaget's theory, and they have said that हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं just by bringing the attention. Attention is very very important. Attention क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रैस्प करना. अगर आपने उनको अटेंटिव कर दिया है तो आप मोटिवेट भी कर पाओगे. राइट, इज दिस क्लियर? अटेंशन बहुत जरूरी है बच्चे की. अगर अटेंशन ले ली तो मोटिवेट कर पाओगे. तो अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी. देन वी हैव अनदर थ्योरी, दिस इज अ थ्योरी ऑफ क्राइसिस. इसको क्या कहते हैं? दिस इज द एरिक्सन्स थ्योरी. तो एक पर्सन है Erik Erikson, this is the name of the person, Erik Erikson. 8 stages of development. इन्होंने क्या दिया है? 8 stages of development दिया है. 8 stages of development. What he said that every child, no matter who he is, every child goes through different stages to learn. And उसी तरीके से वो सीखते हैं. So Piaget talked about ages, and ये वाली थ्योरी फ्रॉइड के ऊपर बेस्ड है. किसके ऊपर है? फ्रॉइड के ऊपर. So Freud talked about id, ego and super ego. क्या किया था? फ्रॉइड ने बात की थी इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो के बारे में बात की है एक पर्सन के. तो मतलब साइकोलॉजिस्ट थे. फ्रॉइड ने क्या किया था? साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी. क्या दी थी? साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी. उन्होंने साइकी यूज करके पढ़ना बोला. लेकिन अगर आप क्राइसिस यूज करके पढ़ोगे तो एरिक्सन की थ्योरी इज बेटर. बट एरिक्सन्स थ्योरी इज वेरी सेम एज फ्रॉइड्स थ्योरी. सो फ्रॉइड सेड every child when they are born, we see that a boy is attached to the mother. This is called as Oedipus complex. There is an id, ego, libido, conscious, unconscious mind that is everywhere, एक हर पर्सन के अंदर. ठीक है, तो ये सारी बातें फ्रॉइड कह रहे थे. लेकिन एरिक एरिक्सन कहते हैं that we grow because of the crisis. हम कैसे ग्रो करते हैं? हम क्राइसिस की वजह से ग्रो करते हैं. एट एवरी स्टेज, एट एवरी एज वी हैव क्राइसिस बिटवीन फ्यू थिंग्स. दो चीजों के बीच में क्राइसिस हो जाएगा, जिसका आउटकम वुड बी लर्निंग. इसका आउटकम क्या होता है? लर्निंग. सो एरिक एरिक्सन वाज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही गेव अ थ्योरी दैट देयर आर 8 क्राइसिस दैट an individual goes through, each which is very significant aspect of child's personality, या फिर कह सकते हो ह्यूमन की पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट में जरूरी होती है. The psychosocial crisis was used by Sigmund Freud, and this concept was given, crisis का concept was given by Erikson. At each stage there is a specific inherent challenges that a child goes through and they learn. ठीक है, वो क्या करते हैं? लर्न करते हैं. एरिक्सन यूज द टर्म syntonic to describe the first, and then we have the positive disposition of each crisis, that is trust, and you can write it down, and the dystonic, that is the second one, that is negative. तो positive negative में हमेशा क्या होता है? crisis होता है. that is syntonic versus dystonic versus dystonic, syntonic versus dystonic. ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में क्राइसिस होते हैं, जिसकी वजह से यू लर्न. सो अपोजिंग फोर्सेस कम टुगेदर and they help us achieve a healthy balanced life. एक healthy balanced life achieve कर पाते हैं. Now I'll give you the stages. हर स्टेज पे there will be crisis, there will be outcomes. We'll draw this. There are 8 stages in total. इसको बनाते हैं so that we can learn it in the class only.
1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है. Then make 4 columns. 1 2 3 and 4. Chalo, let us write it down. I'll write and you write with me as well. So these are the 8 stages of development. We have the aspects, then we have the age, then we have the basic conflict, and then we have important event. ठीक है. So we have the oral sensory age, then we have the muscular anal stage, then locomotor, latency, adolescence, young adulthood, middle adulthood, and maturity. So 0 to 18 months, 18 months to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 12 years, 12 to 18 years, 18 to 40, 40 to 65 years, 65 years till death. We have trust versus mistrust. Here you learn feeding. So important event क्या है, कैसे सीख लेते हो, feeding के साथ. ठीक है. यहाँ पे you have autonomy versus shame and doubt. आपको कहाँ आता है? Basically here it is because of the toilet training that mother gives. Then initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and ego integrity versus despair. Here independence, schoolwork, peer relationships, love relationships, parenting role, and reflection on life. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए डायग्राम. इसको ड्रॉ करो. Draw this down.
एनी डाउट्स अभी तक किसी को भी? देन एक और चीज मैं साथ में लिख देती हूँ सो दैट यू रिमेंबर व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम ईच एज और स्टेज, व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू डू वी लर्न, ये भी जरूरी है। तो पहले हम सीखते हैं होप, होप, विल, पर्पस, होप, विल, पर्पस, competence, fidelity, fidelity, love, care and wisdom. So according to Erikson, ये हमारी सारी क्या है? These are the virtues that you get because of the crisis that you go through. Let us understand this one by one so that the things are clear. सो नॉर्मल में सबसे पहले जब आप ओरल या सेंसरी बॉडी पे डिपेंड करते हो, अपनी सेंस ऑर्गन्स पे डिपेंड करते हो, सो यू स्टार्ट विद द चाइल्ड स्टार्ट्स विद फीडिंग अपनी मदर के साथ, है ना? Here you have hope that if I am hungry, my mother will be there to protect me because you are dependent, completely dependent on the mother. Then you have the muscular and the anal stage where you learn, ठीक है कि अब now I have to go to washroom, I will do things on my own. So this is the positive thing, autonomy, कि मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन खुद कर नहीं पाता बच्चा, है ना? That is shame. Here you learn the process of will, that no matter what, मैं कर लूँगा खुद, I am capable of it. Then 3 to 6, that is the locomotor stage, you take initiative, you want independence, but you have guilt that I'm still not able to do things fully. I'm not rational citizen here. 6 to 12 लेटेंसी स्टेज में आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, तो आपके पास स्कूल का बहुत लोड आता है, इंडस्ट्री दैट इज स्कूल, एंड समटाइम्स यू फेस इन्फ्यूरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वेयर योर फ्रेंड्स टेंड टू डू परफॉर्म बेटर देन व्हाट यू डू. Then you have adolescence. Now this is a stage of storm and stress, as we all know. इसी स्टेज पे ये वही वाली स्टेज है जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है. हियर बिटवीन 12 to 18 years you have high expectations and you create peer relations which is called as homophilic in nature. You tend to believe on your parents less. आप अपने दोस्तों पे ज्यादा बिलीव करते हो, उसे होमोफिलिक नेचर कहते हैं. बहुत सारे बच्चे आर अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर एंड दे लूज देयर ट्रैक. यहीं पर ही देयर माइंड एंड देयर ग्रोथ एंड देयर रैशनल थिंकिंग इज डिस्टर्प्टेड because they create love relations in this stage, while the love relations are always created in the adulthood, young adults में. वहां पे आप क्या करते हो? intimacy and isolation, किसी और के साथ जाने का मन भी होता है, but you have to look for the career also. So this is how your love relations are formed. Somehow you land up with a good person and you love them. So you understand the meaning of love here. Then you have generativity and stagnation where you give birth. A mother would, a girl would give birth, she'll become a woman and give birth, and a father, एक man father बनता है and will create responsibilities, but वो अपने तो retirement के पास जा रहे हैं, तो stagnation भी आता है, इसीलिए वो parenting roles पे आ जाते हैं. उसके बाद आफ्टर दिस देयर इज ईगो फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो ईगो की अपने आप को क्या करना है, इंटीग्रिटी, अपने बारे में जानते हो कि क्या मैंने अपनी पूरी लाइफ ढंग से बिताई या नहीं. नाउ माई होल लाइफ इज वेस्टेड, आई कैन नॉट वॉक, क्लाइंब, रन इतना अच्छी तरीके से जो मैं पहले करता था. उसके बाद डिस्पेयर फील होता है, तो यहां से आप रिफ्लेक्ट करते हो लाइफ में, एंड इट इज ओनली दिस स्टेज वेर यू गेन निर्वाणा, वेर यू गेन मोक्ष, वेर यू गेन विजडम. तो डेथ बेड के पास ही आपको विजडम आती है दैट वाज आई एबल टू लीड माई लाइफ इन अ बेटर मैनर, और आई डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, और आई वाज समवन हु जस्ट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एंड फॉर माई सेल्फ. So you learn hope, you learn will, you have a good purpose, then you learn competency, fidelity, love, care, and ultimately you have a good amount of wisdom. These are the various, you can say, virtues that a child or a person learns. This is what Erik Erikson said. ठीक है? Okay. इसके बाद there is a theory called as the social learning theory. फिर कौन सी थ्योरी आ जाती है? social learning theory.
social learning theory. Now social learning theory was given by the father of social learning theory and his name is Albert Bandura. अभी आपको बताया था मैंने, Albert Bandura is his name. He was born in 1925, a very important person born in Canada. ठीक है, he was someone who had his bachelor in psychology done from British Columbia in 1949, and Bandura is a renowned psychologist. He developed the social learning theory. उन्हें social learning theory develop करी, which emphasizes the role of observational learning. और वो क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चा कैसे सीखता है, observation से. So it is also called as observational learning. It is also called as observational learning. Observational learning, right? The imitation in the development of behavior is very important. क्या करते हैं बच्चे? बच्चे imitate करके सीखते हैं. So imitation of someone helps them learn better. The theory suggests that individual learn by observing the other person and imitating their actions. So you observe someone, आपको वो कोई बहुत अच्छा लगा, आप क्या करते हो, सबसे पहले उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, है ना. उसके बाद आप उस ऑब्जर्व को ट्राई करते हो कि आप अपने उसको इमिटेट करो. इमिटेट मतलब थोड़ा सा कॉपी करो, लेकिन उसको अपने हिसाब से कॉपी करोगे, है ना. सारे एक्शंस आप डिट्टो कॉपी नहीं कर सकते हो, आप इमिटेट करते हो. एंड हियर कॉग्निटिव फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. क्या करते हो, अटेंशन जरूरी है. किसी को जब तक ढंग से देखोगे नहीं तब तक कैसे समझोगे. ऐसे ही उसको अपने मेमोरी में स्टोर करना भी बहुत जरूरी है. साथ में इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड ना, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड देन यू वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व एंड देन कन्वर्ट इट टू इमिटेशन. सो टू इमिटेट you have to be intrinsically motivated yourself also, right? The reciprocal determinism or the self system, the principles of observation are here used. आप क्या यूज करते हो यहाँ पे, आप रेसिप्रोकल करते हो, किसी की चीज को अपने अंदर लाना. तो दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, दो वर्ड्स याद रखना, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म एंड सेल्फ सिस्टम. ये क्या होता है, दिस इज अ सेल्फ बिलीफ सिस्टम वेयर यू नो दैट द लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंट्रिंसिक. कैसा है, इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब इनर. अगर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड दैट इज इंट्रिंसिक. इफ आई नीड समवन टू मोटिवेट मी दैट इज एक्सट्रिंसिक. तो एक बच्चा जब तक, या फिर एक लर्नर जब तक खुद ही मोटिवेटेड नहीं है तो वो लर्न ही नहीं करेगा. सो दिस मीन्स यू ओनली लर्न बाय ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड. तो इसे सेल्फ सिस्टम कहते हैं. व्हाट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, बिहेवियर एंड एनवायरमेंट. ये क्या कहलाता है, ये कहते हैं बेसिकली दैट आप लर्न करते हो द reciprocal system. The reciprocal system says that you learn because of 3 factors. And what are these 3 factors? There is your personal behavior. आपका खुद का फैक्टर, आप कैसा किसी के साथ बिहेव करते हो. What are your qualities? Then what is your behavior with the other person? Quality is behavior. And what kind of environment do you have to learn? So मेरे कुछ फैक्टर्स लाइक हाउ इज माई घर की सिचुएशन, हाउ व्हाट इज द जेंडर, जिससे मैं मतलब मेरा जेंडर क्या है, मेरा सेक्स क्या है, या फिर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी हैं, ये मेरे पर्सनल फैक्टर्स हैं. मेरा कल्चर कैसा है, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे बिहेवियर, एम आई अ प्रूडेंट पर्सन, एम आई अ स्पेंडथ्रिफ्ट, एम आई वेरी टॉकेटिव, एंड क्या मैं बहुत ज़्यादा बुली करती हूँ किसी को, या मैं बहुत काम कंपोज रहती हूँ, मोटिवेटेड हूँ या नहीं हूँ. ये सारे मेरे बिहेवियर होते हैं. एंड एनवायरमेंट, जहां पे आप सीख रहे हो. एनवायरमेंट मतलब जहां पे भी आपको किसी के साथ सीखना है. सो ये 3 चीजें जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, देन यू टेंड टू लर्न थिंग्स बेटर. दिस क्रिएट्स पर्सन्स सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ बिलीफ क्या होता है, यहीं से ही आता है, यहीं से ही आता है सेल्फ एफिकेसी.
सेल्फ एफिकेसी मतलब सेल्फ बिलीफ कि नो मैटर व्हाट मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं. It is a way in which my attitude and my behavior is going to come out and is going to give good results. Now, what is self system? Self system is that I can control my own behavior. I have self generated influences. There are three components that the three components that are used in the process involve self regulation of behavior through activization of self perceived you can say contingencies. Three components: self system, self observation, self judgment and self responses are needed so that you learn. आप क्या करते हो, आप अपने लिए एक ऐसा सेल्फ सिस्टम बनाते हो दैट कोई अगर बाहर से भी आए मुझे डीमोटिवेट करने तो भी मैं अपने आप को रेगुलेटेड रखूं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखूं. नो मैटर व्हाट, मैं किसी और की बात सुन के परेशान नहीं हो जाऊंगी. सो सेल्फ सिस्टम is how you control your own behavior rather than outside se control aana. You can regulate your own behavior. It is very important and I will write it. तो सेल्फ सिस्टम देखो यहां पे मैं लिख देती हूं. सेल्फ सिस्टम बेसिकली सेज व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड इन्फ्लुएंसेस. आप अपने खुद के ही इन्फ्लुएंसेस सीख पाते हो. दिस इज कॉल्ड एज self system. Here there are three components, that is self observation, judgmental process and you have self response. तो आप क्या करते हो, you first of all can observe yourself. You observe, you know where am I wrong. Then you can have proper judgmental process. मैंने सही गलत कहाँ किया and उसके ऊपर मैं response भी ले पाती हूँ. These are the things that are important. Okay, so ये है social learning theory जिसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले there is attention. आप किसी चीज पे attention लाते हो. This is the first thing that you do. Attention. Then कोई चीज अटेंटिव होने के बाद, लेने के बाद आप रिटेंशन करते हो, उसको ज्यादा टाइम तक याद रखने की कोशिश करते हो. अटेंशन, रिटेंशन. देन यू डू व्हाट, रिप्रोडक्शन मतलब अपनी खुद का एलिमेंट भी तो कॉपी करोगे, उसके अंदर डालोगे. रिप्रोडक्शन होता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को अपनी स्किल, अपनी फिजिकल एबिलिटीज के साथ यूज करना. Then there is motivation that is involved. फिर क्या इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, मोटिवेशन. Here reinforcement is also very important. और क्या important है, reinforcement is also very important. reinforcement मतलब अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो प्रॉफिट होगा, कुछ गलत हुआ तो नहीं करूंगी दोबारा से. reinforcement, right? reinforcement. इसी तरीके से बच्चे की मॉडलिंग हो पाती है. बच्चा क्या कर पाता है, सीख पाता है, इससे ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाता है. राइट? ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन. और यहां से अगर मुझे अच्छे आउटकम्स मिले तो मैं दोबारा करूंगी, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगी. हेयर self-efficacy is also there. Self-efficacy, Bandura introduces the concept of self-efficacy जो अभी बहुत बारी पेपर में भी आता है, which refers to individuals believe that they can perform things themselves, they can boost themselves. इस तरीके से they can identify their own self. Who am I? उनको अपने बारे में सबसे अच्छे से पता लगता है. Then what is modeling? Modeling is how your behavior is crystal clear to the other person. So how teacher can use this behavior, ये भी बहुत important है. The teacher can model the student according to themselves. A teacher consciously models the behavior in the classroom so that the child learns. तो यहाँ पे टीचर क्या करती है, मॉडलिंग ऑफ द बिहेवियर करती है. उसके बाद टीचर और क्या करती है, द टीचर हैज ऑब्जर्वेबल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कराती हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कराती हैं आपको ताकि आप सीखो उनसे.
मे आई कम इन मैम, बारी बारी बोलना बताएंगी ताकि आपको पता लगे कि इट्स अ गुड हैबिट. यू इमिटेट, यू इंटरैक्ट विद द टीचर. ज्यादा से ज्यादा इमिटेशन पे फोकस लाएंगे आपका. बहुत ज्यादा इमिटेट कराती हैं, रीइंफोर्समेंट देती हैं. कॉग्निटिव फैक्टर्स, आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स को बूस्ट कर देती हैं. यहां से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है. ठीक है. दिस वॉज अनदर थ्योरी कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग. अब अगर हमने सोसाइटी से सीख लिया, कॉग्निटिवली सीख लिया, तो डोंट यू थिंक हम बहुत ज्यादा मॉरली भी सीखते हैं. सो मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट की भी कोई थ्योरी होगी. बच्चे ऐसे भी सीखते हैं. मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट. द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स थ्रू मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट. नाउ दिस थ्योरी was given by a lot of people. इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है. सबसे इंपॉर्टेंट इज कोलबर्ग, बट इट इज पियाजे ऑल्सो जिन्होंने इसके बारे में बात की है. So moral and ethical theory refers to the process in which the individual acquires a sense of what is right and wrong. उनको क्या होती है? They develop the ability to make ethical decisions. यहाँ से वो क्या करते हैं? Wrong, right and wrong के बीच में जान पाते हैं. प्लस एथिकल डिसीजंस के बारे में जान पाते हैं. क्या करते हैं? एथिकल डिसीजंस के बारे में जानते हैं. दिस इंक्लूड कॉग्निटिव, सोशल, कल्चरल एज वेल एज पर्सनल फैक्टर्स. राइट. एडिशनली कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस contribute to the complexity of moral development. आपके individual differences कितने हैं और आप कैसे उन्हें कर्ब कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन, सोशलाइजेशन, एक्सपोजर प्ले अ वेरी क्रूशल रोल. सो देयर फर्स्ट थ्योरी देयर जो यहाँ पे है हमारे पास, दिस इज अ थ्योरी दैट इज गिवन बाय पियाजे दैट वी आर गोइंग टू डू. ओके. सो दो इट इज नॉट फेमस, कोलबर्ग की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बट पियाजे's थ्योरी of moral development, this is the first topic. You may start writing it down. So Piaget proposed cognitive development through moral development. वो कहते हैं कि अगर आपने cognitive development चाहिए, अगर आपको cognitive मतलब mental growth चाहिए, तो वो moral growth से आती है. बच्चे का moral, ethically decision making भी strong होना चाहिए. So he talked about stages like the first stage is heteronomous morality. That is from age 4 to 7. यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे बच्चे वर्च्यू को बहुत चीजों को बहुत फिक्स देखते हैं. राइट एंड रॉन्ग बहुत फिक्स्ड है उनके लिए. अगर मैंने मम्मा के साथ शाउट करके बात किया, आई एम टोटली रॉन्ग. दोनों साइड्स नहीं देखेंगे वो, है ना. दिस इज वेरी वेरी फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट. दे बिलीव दैट ब्रेकिंग अ रूल लीड्स टू पनिशमेंट, एंड वो इंटेंडेड है कि परमिशन, उनको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी. ब्रेकिंग एनी रूल फिक्स्ड है यहाँ पे हर चीज, या फिर एब्सोल्यूट है. दिस मीन्स अगर मैंने कोई भी रूल ब्रेक कर दिया तो इट इज देयर कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी. दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो पियाजे ने बोला. देन कम्स द सेकेंड स्टेज जो कि बच्चे को क्या बनाती है? ऑटोनॉमस मोरालिटी देती है, जो अकॉर्डिंग टू पियाजे 7 इयर्स से एक ओल्डर एज तक आपके अंदर आती है, टिल द टाइम यू आर एडल्ट. So as a child gets mature, they become more flexible and they understand the rules better. They recognize that rules are created by people and they are working on mutual agreements. उनको rules के बारे में समझ आता है, that rules mutual agreements पे work करते हैं. कोई भी चीज completely सही completely गलत नहीं होती है, उन्हें gray areas के बारे में पता लगने लगता है. These are the two stages. Heterogeneous के अंदर completely उनको दो sides दिख रही हैं. Autonomous में उन्हें पता लगता है कि अच्छा mutual behavior is needed. Okay? Is this clear? So Piaget की theory तो was as follows.
देन देयर इज अनदर थ्योरी, ये भी लिखते हैं, दिस इज अ थ्योरी गिवन बाय कोलबर्ग। ये किसने दिया है? कोलबर्ग ने दिया है थ्योरी। सो जब कोलबर्ग ने ये थ्योरी दी तो कोलबर्ग ने हेंज नाम के एक पर्सन पे एक्सपेरिमेंट किया। कोलबर्ग गेव स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उन्होंने स्टेजेस दी मॉरल डेवलपमेंट की। बेसिकली उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल को बिठा के ना पहले हेंस की थ्योरी सुनाई, फिर अपनी हेंस की स्टोरी सुनाने के बाद अपनी थ्योरी दी। होता क्या है, देयर इज दिस पर्सन हेंस की एक वाइफ है जो कि डेथ बेड पे है ना। उनको एक मेडिसिन चाहिए, उनको क्या चाहिए? एक मेडिसिन चाहिए अगर उनकी जान बचानी है तो, अदरवाइज शी विल डाई। हेंस केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट उनको डिनाई कर देता है बिकॉज हेंस हैड नो मनी। हेंस केमिस्ट की शॉप पे रात को जाता है, वो थीफ बन जाता है, उनकी मेडिसिन चुराता है और अपनी वाइफ को दे देता है। क्या ये मॉरली सही है? तो इनिशियल स्टेजेस पे बच्चों को लगेगा कि हेंस गलत थे, उन्होंने क्या किया? क्राइम कर दिया। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो आपको पता लगता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट पे चीजें होती हैं। अगर उनको अपनी वाइफ की जान बचानी थी तो ही हैड नो ऑप्शन बट टू डू दिस। ठीक है, सो उन्होंने 3 स्टेजेस एंड 3 के अंदर 2 स्टेजेस और हैं, टोटल 6 स्टेज हो गई। ऐसा करके एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। लेट अस राइट दैट। तो सबसे पहले उन्होंने बोला दैट देयर इज अ फर्स्ट स्टेज कॉल्ड एज प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल इज द फर्स्ट लेवल जहां पे आप स्टेज 1 से 2 तक जाते हो। Stage 1 to 2. Now, morally, you determine the consequences here. You are very self-centered and you focus on personal gains. आप कैसे हो? Self-centered हो और personal gains पे यहाँ सब कुछ करते हो। This is the first stage. इस first stage के अंदर दो और first level में 2 stages हैं। फर्स्ट स्टेज ये क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इस लेवल में आप क्या सोचते हो? मुझे मम्मी की सारी बातें माननी है, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। आप डर डर के रहते हो कि अगर कुछ गलत कर दिया तो पनिशमेंट मिल जाएगी। इंडिविजुअल बहुत ज्यादा क्या करता है? रूल्स में मानता है, दे एडहर टू रूल्स। देयर इज अ सेकेंड स्टेज दैट इज देयर, सो दे थिंक दैट रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो बिल्कुल सही गलत के अंदर ही होते हैं। देन वी हैव इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये वाली स्टेज वो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की, जो कि एक सेकेंड स्टेज है। और इसके अंदर लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। मोरालिटी इज व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ इक्वल एक्सचेंज एंड रेसिप्रोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शेयर माई टॉयज विद यू, यू हैव टू शेयर योर टॉयज विद मी। इस स्टेज में आप क्या करते हो? एक्सचेंज के बारे में बात करते हो। तो टॉय का एग्जाम्पल याद रखना, मैंने तुझे मेरी पेंसिल दी, यू हैव टू गिव मी योर पेंसिल, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है, दैट इज प्री कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पे 2 स्टेजेस हैं। एक लेवल की 2 स्टेजेस हैं। बहुत ज्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड हो इस लेवल में और पर्सनल गेन्स पे बात करते हो। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, दिस इज द फर्स्ट लेवल। उसके बाद आप आते हो प्री कन्वेंशनल से कन्वेंशनल लेवल पे। कन्वेंशनल लेवल, अब इस लेवल के अंदर भी तो 2 स्टेजेस होंगी। कन्वेंशनल लेवल है जब आप सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में सोचने लगते हो। किसके बारे में? सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में सोचने लगते हो, एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज होने लगती हैं सोसाइटी से। ये वो स्टेज है वेयर यू ट्राई टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। बड़े हो गए हो भाई, थोड़ा सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करोगे। तो हियर यू हैव स्टेज 3, that is interpersonal relationships। आप यहाँ क्या करते हो? आप वही करते हो ताकि आप दूसरों के साथ दोस्ती करा पाओ अपनी। तो here you create interpersonal relationships, here you meet people and you are at a teenage stage, you want people to like you, इसलिए you do what others want you to do। Then there is stage 4, that is maintaining social order।
दिस इज डिफाइंड बाय फुलफिलिंग ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटीज करते हो, रिस्पेक्ट करते हो सबकी, और क्या करते हो, अथॉरिटी की सारी बात मानते हो। आप मानते हो कि लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज पे आपको लगता है लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कन्वेंशनल level. Then there is the third level and the last level, and this is called as post conventional. पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, अब इसके अंदर भी तो आएंगे हमारे 2 स्टेजेस और। मोरालिटी अब यहाँ पे क्या हो गई है आपके लिए, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल बन गई है। आपने देख लिया है कि इतने सारे लोग, जितने सारे लोग उतनी ही बातें, ठीक है, जितने लोग उतनी बातें, सब अपने अपने बेनिफिट के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आप बियॉन्ड कन्वेंशनल हो गए हो, ठीक है, आप यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट रॉन्ग से थोड़े दूर हो, है ना। सो हेयर यू इंक्लूड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पे आप क्या देखते हो, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में देखते हो, ऐसा कोलबर्ग ने कहा। एंड हेयर यू हैव व्हाट, हेयर यू हैव द 2 स्टेजेस, दैट इज स्टेज 5, social contract and individual rights. Then you have the fourth stage, that is universal principles. Universal principles. सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या कर रहे हो, दिस स्टेज रिकॉग्नाइजेस वेरी सिग्निफिकेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स। हेयर यू मेंटेन द जस्ट सोसाइटी, द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी के बारे में समझ आने लगता है। एंड द लास्ट स्टेज में यू रिकॉग्नाइज इनहेरेंट वर्थ एंड यू डिग्निफाई ऑल द इंडिविजुअल्स एंड देयर डिसीजंस। तो आप लास्ट में हर किसी की डिग्निटी के बारे में सोचने लगते हो, डिग्निटी के बारे में, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में, सोसाइटल रूल्स के बारे में। किसके बारे में, सोशल रूल्स के बारे में आपको कहाँ समझ आता है, स्टेज 6 पे समझ आता है। दिस इज द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब आप कन्वेंशनल लेवल से आगे आ चुके हो, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस, 3 लेवल्स। पहले तो प्री कन्वेंशनल लेवल, वेर यू हैव द स्टेजेस, स्टेज 1 कॉल्ड एज obedience and punishment, stage 2 called as individualism and exchange, stage then there is another level, conventional level. यहाँ पे you have interpersonal relations and maintaining social orders. Then post conventional क्या होती है, you have social contract and individual rights and universal principles. हमारे पास और भी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोलबर्ग की ही है। तो हम लोग आज इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, कोलबर्ग तक रुकने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में और चीजें देख लेंगे। फिर इसे नोट कर ले, शुड आई गिव यू टाइम टू नोट दीज थिंग्स। वैसे तो आपको ये हर जगह पे मिल जाएगा, बुक में भी ये दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। देयर आर अदर थ्योरीज, जैसे गिगलियंस थ्योरी है जो कि केस बेस्ड मोरालिटी के बारे में बात करती हैं। देन अटैचमेंट थ्योरी है, उसको भी पढ़ेंगे। इसी एज में अटैचमेंट थ्योरी आती है जिससे आपका बिहेवियर चेंज होता है। what is secure attachment, what are the different types of attachments that are there, insecure attachment, या फिर आप कह सकते हो अवॉइडेंट अटैचमेंट, डिसऑर्गेनाइज, इंटरनल, एक्सटर्नल, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट थ्योरीज दैट वी लर्न। उसके बाद हम लोग साइकोमोटर डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डू, बट कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए धीरे धीरे। सो कोलबर्ग की थ्योरी तक आई होप सबको समझ आ गया है। एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, एल्बर्ट बेंडूरा,
Kohlberg. These were the 4 to 5 very important psychologists that we discussed in today's class. सारे ही पेपर में आते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है. तो नोट दिस. अगर इसे नोट कर लिया है, फिर सोशल लर्निंग थ्योरी. If you have noted this, read a little bit about self-observation, judgmental process, self-response. Learn what is the difference between self-esteem and self-efficacy. क्या होता है self-esteem और self-efficacy? Then you have the moral and ethical theory. इसके अंदर तो heteronomous and autonomous है, जो पियाजे ने दी है. important ये वाली है. और हेंस के बारे में बात की थी उन्होंने. हेंस के ऊपर थ्योरी करके देखा उन्होंने, या उसकी स्टोरी सुनाई, ऐसा आप समझ सकते हो. सो वी हैव प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. प्री कन्वेंशनल मतलब इतनी बच्चे को एजुकेशन नहीं है अभी, तो उन्हें सोशल सिनेरियोस के बारे में पता ही नहीं है. वो बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोच रहे हैं. धीरे धीरे पनिशमेंट से बचने का ट्राई करते हैं, तो दूसरों के बारे में, अपने खुशी के बारे में मैनेज करने का ट्राई करते हैं. उसके बाद उन्हें ठीक है इंडिविजुअल राइट्स और अपनी डिग्निटी के बारे में समझ आ जाता है. ओके, कूल. सो विद दिस आई कैन वाइंड अप द क्लास. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे. होमवर्क करेंगे सारे, थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करेंगे. ठीक है. Thank you and have a wonderful day.